Okay. So today's topic is maximum power point tracking algorithms. Now, why do we need the MPPT algorithms? बता सकता है कोई मुझे? Anyone? As the answer is written. हाँ, बताइए प्लीज. जिधर मैक्सिमम रेडिएशन उधर नु मूव करिए. Okay, as we know that in the early lectures we have covered up the PV characteristics and the IV characteristics for the solar array, for the solar panel or module. ठीक है. So at the bending point of the curve of the VI characteristics or IV characteristics, बेंडिंग पॉइंट जहां पे आता है वहां पे वो वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, दैट इज अ मैक्सिमम पावर पॉइंट होता है, MPP. ठीक है. तो उसी पॉइंट को हमने ट्रैक करना होता है थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द ईयर, whenever the solar rays fall over the surface of the module, we have to track that point because that point keeps on changing, the characteristics keeps on changing throughout the day depending upon the position of the sun in the sky and intensity of the light that reaches over the surface of the solar panel and the temperature of the panel and the surroundings also. ठीक है. So we can say that algorithms की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है because जो हमारा मैक्सिमम सोलर पावर ऑब्टेन करते हैं हम एरे के थ्रू, वो डिपेंड किस पे करती है? एक तो इरेडिएशन के ऊपर डिपेंड करती है, सेकेंडली इट वेरीज विद टेम्परेचर आल्सो. सो एल्गोरिथम हमें क्या करते हैं? एल्गोरिथम हमें हेल्प आउट करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोलर एरे इन एनी कंडीशन. कोई भी कंडीशन हो, कितनी भी अमाउंट ऑफ इरेडिएशन हो, दैट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रीचिंग द surface of the solar panel and the temperature, these tracking algorithms help us to obtain the maximum power from the solar panel. Now, among all the algorithms that are in used for tracking the maximum solar power point, P&O and incremental conductance algorithms are most commonly used because of the advantage of easy implementation. नॉर्मल कंडीशन में जो हम पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, जो पीवी कर्व जो ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर एक ही आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है. सो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू ट्रैक दैट पॉइंट थ्रू आउट द डे. बट if the PV array is partially shaded, then we can have multiple maxima on these curves and we have to get out only one point so that at one particular instance, so that we can obtain maximum power from the solar array with the help of the algorithm. Now, before proceeding towards the P&O and incremental conductance algorithm, let us see some of the basics algorithm used in order to track the MPP, that is maximum power point. The first one is known as curve fitting method. It is considered to be an offline method where we need certain data beforehand so that MPP algorithm can be implemented. And what data that we have to obtain is PV module characteristics should be initially in hand with you. जो भी हमारी characteristics है PV module की, वो हमें पता होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए. ठीक है. And the data related to the manufacturing details, जो भी data है मैन्युफैक्चर ने पैनल कैसा बनाया है, कौन सी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का यूज किया गया है, वेदर इट इज अ मोनोक्रिस्टलाइन, वेदर इट इज अ पॉलीक्रिस्टलाइन और अमॉर्फस और सर्टेन, और उसमें हमारा सिलिकॉन कितना यूज किया गया है, जर्मेनियम का कितना इस्तेमाल किया गया, अगर हमारा अमॉर्फस थिन फिल्म स्ट्रक्चर है, ठीक है, पॉलीक्रिस्टलाइन है या मोनोक्रिस्टलाइन. सो all the data related to the manufacturing details are required beforehand in order to obtain the maximum power point. Then mathematical model and the equations which describe the output characteristics of the PV module should be required initially. So for example, जो हमें PV module की जो output characteristics होती हैं, that has been described as per the equation one given here. The equation one given here is known as पावर की इक्वेशन यहाँ पे दी गई है. ठीक है. Here in the सबस्क्रिप्ट PV लिखा हुआ है. PV का मतलब क्या होता है? फोटो वोल्टाइक. ठीक है, फोटो वोल्टाइक. सो जहां भी आपको सबस्क्रिप्ट नजर आएगा वोल्टेज, करंट या पावर के पैर में, ठीक है, तो उस चीज को हम पीवी से रिप्रेजेंट किया होगा. पीवी का मतलब क्या है? फोटो वोल्टाइक. सो पावर इज इक्वल टू A इंटू वी क्यूब प्लस B इंटू वी स्क्वायर प्लस C इंटू V प्लस D, वेयर ABCD जो है वो हमारे कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट्स हैं जिनको हम डिटरमिन करते हैं बाय सैम्पलिंग M वैल्यूज ऑफ द पीवी वोल्टेज.
जो फोटोवोल्टेक पैनल की जो वोल्टेज है VPV, उसकी m सैंपल वैल्यूज लेके हम ABCD कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को डिटरमिन करते हैं. आई थिंक देयर इज समवन इन द in the lobby. Let us enter in. 1 second guys, just wait. Yes, so we find out the values of the ABCD coefficients by sampling the m values of the PV voltage in the equation number 1. एक बार अगर हमारे पास ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ जाएंगी, then we will be able to calculate the voltage corresponds to the maximum power point. So VMPP की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं and by putting the values of A, B, C coefficient and as per the equation number 2. Now what is the point of maximum power? अगर हमने इक्वेशन के थ्रू मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑब्टेन करना है तो उसको कैसे ऑब्टेन करेंगे? व्हाट इज द कंडीशन इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम? यू नो दैट मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? जिस चीज की हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है उसका विद रिस्पेक्ट टू उसका डेरिवेटिव लेके क्या करते हैं, उसको इक्वल जीरो के इक्वल जीरो पुट कर देते हैं. ठीक है, तो सेम हियर, अगर हमें मैक्सिमम पावर, हमें क्या चाहिए? पावर मैक्सिमम चाहिए और ऑब्टेन भी हम क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम पावर पॉइंट को निकालते हैं. सो हम जो पावर होगा उसका डेरिवेटिव लेके विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज निकाल किस चीज कर रहे हैं? फोटोवोल्टेक का निकाल रहे हैं, इसीलिए हम dP/dV लिखा हुआ है और उसको क्या करेंगे? इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे. Whenever this condition will reaches, we will get the corresponding maximum power point, and the voltage corresponds to that can be obtained from the ABC coefficients as given in the equation number 2. The advantage of this method is that its simplicity, because it is the most simplest method, but simultaneously this is the one of the disadvantage यहाँ पे बन जाती है, that is the prior information. As I have told you that PV module characteristics, data related to the manufacturing details, mathematical model and the equations which represents the output characteristics of the PV module all have to be get before implementing the algorithm. algorithm को बनाने के लिए हमें ये सारी चीजें, ये physical parameters prior और इनकी information हमारे पास होनी चाहिए, इंजीनियर या रिसर्चर के पास होनी चाहिए. So that comes out to be the disadvantage also, because accurate knowledge in physical parameters की पहले से ही obtain करके रखना is not a easy task. As data requirement is also large, so large memory चाहिए हमें इसको store करने के लिए. ठीक है, therefore more calculations will also be required and corresponding speed is less because more calculations are required. हमें speed जो in order to obtain the VMPP reduces. Second method is known as the differential method. As the name suggests, it is a differential method, means it is a derivative. So here we will take the differentiation of the power with respect to the time, and the equation number 3 will be utilized here, which is dP/dt is equal to V di/dt plus I dV/dt, which has to be put equal to 0. Okay, so in this method what we'll do, equation number 3 को हम solve करते हैं in a very fast manner to get the most accurate operating point. जो हमारा operating point है, maximum power point है, उसको obtain करने के लिए we have to solve this equation very fast. And simultaneously the disadvantage of this method is it requires more calculation time. How it requires more calculation? However, we are solving this equation very fast, but calculation time is more. बिकॉज कैलकुलेशन टाइम इज मोर इसलिए होता है क्योंकि एक बार हमने इक्वेशन नंबर 3 के पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लिया, फिर हमें क्या करना होता है?
सम निकालना होता है, दैट इज आई, जो ऊपर अभी आप इक्वेशन के अंदर देख रहे हैं, आई पीवी डीवीपी प्लस वी डी आई का, इसका सम कैलकुलेट करना होता है. देन आफ्टर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू कंपेयर दिस सम टू एन इक्वल परटर्बेशन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट और द ऑपरेटिंग पॉइंट पावर, व्हिच मींस दैट इक्वल परटर्बेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल वी हैव कैलकुलेटेड एट वन साइड, जैसे हमने कर्व किया था पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व, ठीक है, याद है सभी को पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व किया था. सो पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की दो साइड्स हैं, ठीक है, एक साइड यहाँ से शुरू हो रहा है और एक साइड यहाँ पे आके आपका खत्म हो रहा है, और एक हमें टॉप पे ऊपर जाके मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑब्टेन होता है, ठीक है. फ्रॉम दैट कर्व इट हैज टू साइड. तो मान लीजिए हमें अगर राइट हैंड साइड पे मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है एज पर दिस इक्वेशन नंबर 3, देन ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम इक्वल परटर्बेशन लेके, मींस दैट विल बिकम द ऑपोजिट साइड, वहां पे भी हम ऑपरेटिंग पॉइंट निकालेंगे, ठीक है. अगर सम इक्वल टू 0 आ जाता है then we need no further calculation, but till the sum does not become equal to 0 we keep on repeating the calculations, और ज्यादा calculations हमें further process करनी पड़ती हैं if the sum does not comes equal to 0, अगर इसका सम आपका 0 के इक्वल नहीं आ जाता. Then the next method जो है आपके open circuit voltage method and short circuit method, these are the most simplest or the most easiest method to track the maximum power point in order to get the maximum power point. So they basically depend upon the equation number 4 as open circuit voltage method is concerned. So in this method what we'll do, we find out the ratio of PV's array maximum power voltage to its open circuit voltage, and that ratio is taken approximately as constant and write it down as K1. उस constant को हम represent करते हैं K1 के साथ, and the value of the constant is less than 1, मीन 0 से 1 के बीच में जनरली लाई करती है. सो रेशियो किस चीज के ले रहे हैं हम, वी एमपीपी एंड वीओसी की. सो इक्वेशन नंबर 4 becomes V MPP divided by VOC is approximately equal to K1 whose value is less than 1. So now in this equation number 4 MPP, OC and one word are in the subscript. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ V underscore MPP, V underscore OC, K underscore 1, तो आपने इसको एज इट इज नहीं लिखना है, आपने क्या लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखे हुए हैं, ऐसे आपने वर्ड्स लिखने हैं. मींस MPP, OC एंड दिस वन हैज टू बी राइट डाउन एज अ सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में आपने इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, अंडरस्कोर करके नहीं लिखना है, ये याद रखना, ठीक है. इन द फाइनल एग्जामिनेशन इफ द सच क्वेश्चन केम देन यू हैव टू राइट डाउन इन द सबस्क्रिप्ट MPP, OC और K1 को आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है. क्लियर? In order to implement this open circuit method, a flowchart has been given below that you can easily see. So in flowchart, what we'll do, सबसे पहले हम क्या करते हैं, we isolate the solar array from the MPPT. Tracking से हम क्या करते हैं, हमारे array को हम अलग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है, मींस उसके कनेक्शंस हम ट्रैकिंग एल्गोरिथम से बाहर कर लेते हैं. सो आइसोलेट कर लिया एक बार हमने मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग से. सो आइसोलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी ओपन सर्किट वोल्टेज होती है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है. ओपन सर्किट वोल्टेज को हमने क्या करना है, मेजर कर लेना है बाय टेम्परेली आइसोलेटिंग द PV array from the MPPT. Now after the V MPP is calculated according to the equation number 4, ऊपर इक्वेशन नंबर 4 है बिकॉज VOC की वैल्यू हमारे पास है और K1 कांस्टेंट है, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V MPP फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4. वी विल गेट द फाइनल ऑपरेशन वोल्टेज which is set to the maximum voltage point and the process is repeated periodically again as you can see in the flow chart. सबसे पहले हमने क्या किया, आइसोलेट किया, फिर रिकॉर्ड किया एरेज की VOC को, फिर कैलकुलेट किया V MPP फ्रॉम द वैल्यू which has been measured from the VOC. then we will vary the ऑपरेटिंग वोल्टेज, एरे की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज को वेरी करेंगे ताकि जब तक हमको V MPP रीच ना हो जाए, ठीक है, V MPP की वैल्यू आ ना जाए, तब तक हम उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज को वेरी करेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर उसको आगे प्रोसीड करेंगे, थ्रू आउट कैरिड आउट करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम पावर पॉइंट, क्योंकि वो बार बार चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द इरेडिएशन, विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर. सो वी विल हैव टू, सो दिस एल्गोरिथम कीप्स ऑन रिपीटिंग, बार बार चलता रहता है आपका. Advantage of this method is that it is simple and cheap. Disadvantage that it is difficult to choose an optimum value of K1.
Generally, the literature that has been followed, they have reported the value of K1 which range from 0.73 to 0.80 if polycrystalline PV modules are being used. So in the literature from where the data has been taken, so they have reported the value from 0.73 to 0.80 for the polycrystalline PV modules. Now this is the open circuit method, so we here calculate the VOC, open circuit voltage. You all know that open circuit method में हम क्या निकालते हैं, वोल्टेज फाइंड आउट की जाती है, ठीक है. एनी शॉर्ट सर्किट करंट वी मेजर द करंट, ठीक है, करंट लिए जाता है. तो शॉर्ट सर्किट मेथड इज सिमिलर टू द ओपन सर्किट वोल्टेज मेथड. In fact, where the voltage is being calculated, here the short circuit current will be obtained in order to get the maximum power point related to current. VMPP की जगह अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, current in MPP which is linearly proportional to short circuit current as per the equation number 5. So यहाँ पे हम रेशियो किस चीज की ले रहे हैं, IMPP ISC short circuit which is approximately equal to K2 which is again a constant and its value is 0.85 के आसपास होती है, again less than a 1. So only यहाँ पे disadvantage जो आपकी carried out होती हैं, what you called for open circuit voltage method, advantage and disadvantages and the flow chart remains the same for the short circuit method as we have done in the open circuit voltage method. Only you have to change the things where we are finding out the value of VOC, we have to write down we are finding out the value of ISC. यहाँ पे हमने लिखा है VMPP, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे IMPP, ठीक है. Means voltage has to be replaced with the current value, corresponding current value in the algorithm flow chart for the short circuit method. So these four methods are the very basics one in order to get the MPP, that is maximum power point. Okay. Now the following methods that we have to cover up, these are known as the computer or the algorithms or computer iterative methods in order to track the algorithm. In order to track the maximum power point. The first method that we'll cover up is perturbation and observe method, or simply known as P&O method. It is an iterative method of obtaining the maximum power point. Iterative method होता है means where we do several iterations. For example, we have calculated one value of particular quantity. तो किसी भी physical quantity की हमने एक value find out कर ली. Then what we'll do, then we'll see according to the given algorithm certain conditions will be checked upon that value. ठीक है. After, if the conditions are fulfilled or not fulfilled, then certain parameters have to be adjusted in that value, and we will again run the program, and after running the program we'll see how much change is there in the value, कितनी change आ गई आपकी वैल्यू में, और उस चेंज को हम उसमें ऐड या माइनस करके फिर उसको रन करवाते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है, ताकि जब तक हमें रिजल्ट दो कंसेक्यूटिव रिजल्ट हमारे सेम नहीं आ जाते एंड में, ठीक है. मींस हमारा डिफरेंस जो हमारा सम है वो हमारा इक्वल टू 0 नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम जो वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं. इफ जो दो वैल्यू हमारी सेम आ जाती है कॉरेस्पॉन्डिंगली, देन वी विल से दैट द मेथड इज आइटरेशंस आर नाउ कंप्लीटेड, ठीक है जी. सो ये कॉमन एक आइटरेशन मेथड इस तरीके से चलते हैं, बट हियर इट इज अ लिटिल डिफरेंट कांसेप्ट. सो आइटरेटिव मेथड इसलिए यूज किया क्योंकि बॉस वी हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग, वी हैव टू कीप ऑन using the algorithm again and again throughout the day, throughout the time for the solar panel is being installed. So इसके लिए क्या चाहिए हमें, it measures the PV array characteristics. Again array characteristics को measure करनी है हमने, ठीक है. IV characteristics means PV. जब भी हम बोलेंगे PV array characteristics, it means that IV characteristics and PV characteristics. And then we perturbs the operating point of the PV generator. PV generator यहाँ पे हम बोलते हैं PV module को, ठीक है, because it is a photovoltaic generator can also be called. एंड देन ऑपरेटिंग पॉइंट हम उसका perturbs का मतलब यहाँ पे है, वैसे डिक्शनरी मीनिंग होता है गड़बड़ करना. गड़बड़ करना मींस वैल्यू में चेंज लेके आना, बदलाव लेके आना. सो यहाँ पे बदलाव और चेंज से इसको एज अ जज कर सकते हैं कि मीनिंग क्या है इसका. सो देन हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है पीवी जनरेटर का, उसको उसमें कुछ चेंज या बदलाव लेके आते हैं टू इनकाउंटर द चेंज डायरेक्शन, ताकि हमें पता चले कि मैक्सिमम पावर पॉइंट किधर किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. So in below you can see the flow chart for the P&O method. As you can see here,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, दैट इज बिगिनिंग होगी हमारी। देन वी विल मेजर द वैल्यू ऑफ v एंड i एट वन पर्टिकुलर इंस्टेंट, मींस एक सैंपल वैल्यू उसकी लेंगे, सैंपलिंग इंस्टेंट पे ले लेंगे t1 मान लीजिए उसको, ठीक है। सो एंड t1 इंस्टेंट पे हमने उसकी वैल्यू मेजर कर ली। सो द फर्स्ट वैल्यू दैट वी हैव टेकन हियर will be considered as a reference value। so ये अब हमारी पहली रेफरेंस वैल्यू बन जाएगी, that is vt1, ठीक है। फिर हम पावर को कैलकुलेट करेंगे विद द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द vi, बिकॉज ये हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, पीवी एरे कैरेक्टरिस्टिक से ऑब्टेन हो रही है। सो p का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो vi को प्रोडक्ट करके हमारे पास pt1 की वैल्यू आ जाएगी। देन वी विल अगेन मेजर द वैल्यू ऑफ v एट अनदर इंस्टेंट, मींस किसी और सैंपलिंग वैल्यू पे हम उसको मेजर करेंगे, t2 पे मेजर कर रहे हैं। So now the next reference will become the VT2। So PT2 क्या हो जाएगी हमारी, again VT2 into IT2। Now the change in power will be measured here। कितना पावर आपका पहले से पिछले इंस्टेंट से T1 से T2 के बीच में कितना चेंज आया in the power that we are going to measure here in the last rectangle box। डेल्टा पी T2 पे हमें अभी ऑब्टेन करना है। डेल्टा पी T2 पे कितना होगा, दैट इज PT2 माइनस PT1। नाउ विल कम द डिसीजन मेकिंग। अब आता है आपका डिसीजन मेकिंग की डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी। डेल्टा पी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, देन अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक यस होगा, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है मींस नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, कम है वैल्यू, देन कंडीशन हमारी एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में हमारे पास दो डिसीजन निकल के आएंगे, आइदर यस और नो, ठीक है। सो विल सी द बोथ कंडीशंस। अगर यस आता तो क्या करेंगे, अगर नो आता तो क्या करेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 है, दिस मींस जो हमारा वी रेफरेंस T3 होगा, T2 तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया, नाउ T3 हमारा फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यू से निकलेगा। उसमें हम क्या करेंगे, प्लस सी क्या है हमारा, स्टेप साइज ऑफ द परटर्बेशन, मींस जो हम चेंज लेके आना चाहते हैं कितना उसमें और एडिशन करेंगे, which shows that जो हमारा मैक्सिमम पावर पॉइंट है, इट इज शिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द इट इज शिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पावर इंक्रीज, या जिधर पावर आपकी इंक्रीज हो रही है उधर उसी डायरेक्शन में आपका शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर आपका डेल्टा पी ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब नो हमारा आंसर आया, नो के केस में हम क्या करेंगे, उतना ही साइज हम माइनस कर देंगे प्रीवियस वैल्यू में से जो हमारी वी रेफरेंस T2 थी, एंड अगेन विल गो अबव एंड डू द कैलकुलेशंस। फिर से वही कैलकुलेशंस हम स्टार्टिंग में जाएंगे और वही कैलकुलेशंस आपकी कीप ऑन रिपीटिंग। A table has been, a two table has been also shown here in order to understand the operation of the perturbation of the observed method। डेल्टा P T2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो VPV क्या होगी आपकी T3 इंस्टेंट पे प्लस होगा, मींस इंक्रीमेंट होगी, बढ़ेगी आपकी वैल्यू। अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगी, डिक्रीमेंट होगा, आपकी वैल्यू कम होगी। सो मैक्सिमम पॉइंट हमें तब रीच होगा, वही कंडीशन अगेन व्हेन dP by dV इज इक्वल टू 0, जब दोनों का चेंज जो होगा वो इक्वल 0 के बराबर आएगा। एल्गोरिथम ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया, मोस्ट बेसिक फॉर्म में, फ्लो चार्ट एल्गोरिथम की फॉर्म में आपको वहां पे ऊपर समझाया हुआ है, ठीक है जी, जो मैंने अभी आपको बताया। नाउ हियर इन दिस पैराग्राफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्लो चार्ट हैज बीन गिवन दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। सो रिपीटिंग अगेन, डूइंग दिस द ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होगी हमारी, ठीक है, पीवी जनरेटर की, उसको परटर्ब करेंगे बाय अ स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा वी, मींस बड़ी थोड़ी सी चेंज हुई, एज अ रिजल्ट डेल्टा पी आपका बढ़ेगा, ठीक है, उसको मेजर कर लेंगे। अगर डेल्टा पी की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो जो हम परटर्बेशन होगी, मींस जो चेंज होगी ऑपरेटिंग वोल्टेज में, वो सेम डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हमारा पावर बढ़ रहा है, मींस इंक्रीमेंट होगी आपकी। अगर वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है डेल्टा पी, मतलब नेगेटिव का वैल्यू मतलब कहता है लेस देन 0, लेस देन 0 आ रही है तो सिस्टम जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, इसका मतलब वो एमपीपी से दूर जा रहा है, अवे हो रहा है, दूर जा रहा है आपका, ठीक है, दैट्स व्हाई आपका चेंज जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगी दैट शुड आल्सो बी मूव्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीमेंट, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, माइनस डिक्रीमेंट, मींस माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। द लॉजिक is already explained in the table number 1 as well as in the flow chart. Now in the below figure given here, it shows the deviation from the maximum power point with the P and O algorithm under rapidly changing insolation levels. Fine. Under rapidly changing insolation level का मतलब है
कि अगर आपकी जो इरेडियंस की वैल्यूज है, सोलर इरेडिएशन है, वो इमीडिएटली चेंज होती है ड्यू टू द सडन चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, सराउंडिंग में जो कंडीशंस है उनमें बदलाव होने के कारण अगर आपकी सोलर इरेडिएशन की वैल्यू इमीडिएटली चेंज होती है, बढ़ती है, कम होती है, ज्यादा होती है, देन द एल्गोरिथम डज नॉट रिएक्ट टू दैट चेंज as per the, you can say that as per the change in the solar irradiation. Means for example, in simple words I'll say that आपका सोलर इरेडिएशन के कारण क्या हुआ, पावर बढ़ गया, ठीक है। मीन सोलर इरेडियंस आपकी बढ़ी, रेडियंस इंटेंसिटी आपकी बढ़ी, उसके कारण क्या हुआ, आपका पावर इमीडिएटली बढ़ गया, ठीक है। मीन्स पावर इज इंक्रीज्ड, पावर क्या हुई, बढ़ी हुई, बढ़ गई, ठीक है। बट एल्गोरिथम को क्या लगेगा कि ये पावर बढ़ गई है, इससे अब क्या करना है, हमने जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है उसमें जो पेट्रोवेशन करनी है, मींस हमने इंक्रीमेंट करना है, पेट्रोवेशन में क्या करना है, हमने इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। बिकॉज डेल्टा पी इज ग्रेटर देन 0 आ गया, वो क्या बोलेगा कि पेट्रोवेशन में इंक्रीमेंट होगा, अब आपका और वैल्यू हम ऐड कर देंगे। बट दैट चेंज इज नॉट बिकॉज ऑफ द measured value of the V reference T1 and V reference T2, उसके कारण नहीं आया है, that is because of the increase in the power due to the change in the irradiance value immediately due to the change in the environmental condition. So the algorithm reacts as if the increase occurred as a result of the previous perturbation of the operating voltage. उसको लगेगा कि perturbation के कारण आपका डेल्टा P बढ़ा है, ठीक है, बट डेल्टा P तो किसके कारण बढ़ा था, सोलर रेडिएशन के बढ़ने के कारण। सो यहाँ पे उसी को पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने कर्व 1, 2 और 3 की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, ठीक है जी। सो मैं कर्व आपके सामने रखता हूँ एंड एक्सप्लेन इट। सो सबसे पहले हमने देखना है कर्व नंबर 1। सो कंसीडर्ड हियर जो हमारी इरेडियंस मीन सोलर से जो हमारी रेडियंस आ रही है, मीन जो रेडिएशंस आ रही हैं, वो हमारे को पीवी कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स बना के दे रही है एज पर द कर्व नंबर 1। सो हमारे पास पीवी कर्व कैरेक्टरिस्टिक कैसे ऑब्टेन हो रही है, कर्व नंबर 1 से ऑब्टेन हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ये 0 से नहीं शुरू हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमारा वोल्टेज 30 से शुरू हो रही है, 0 से नहीं शुरू हो रही, इसीलिए ये कर्व आपका 40 के आसपास की वैल्यू से शुरू हो रहा है, ठीक है। सो जनरली जो हमने पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स में किया था वो कर्व यहाँ से शुरू किया था और फिर नीचे यहाँ पे आके आप एंड कर देते हैं और यहाँ पे हमें कोई मैक्सिमम पावर पॉइंट मिलता है, ठीक है। बट हियर द कर्व ऑफ द voltage axis, the index of the voltage axis starts from 30 rather than 0. That's why curve has been started some already power value, कुछ power value से already यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है जी। अगर आपको पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसमें कहीं डाउट हो तो याद रख लेना कि इंडेक्स में देख लेना कि वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है आपकी, इसलिए ये इस तरीके से बनाया गया है। सो कमिंग टुवर्ड्स द फिगर नंबर 3। सो हियर द कर्व नंबर 1 is as per the irradiance which generates the PV characteristics as you can see in the figure number 3. So यहाँ पे हमें जो operating voltage मिल रही है that initially oscillates between the maximum power point. ये जो आपके कम shaded वाले means कम black वाले जो dots हैं, these represents the maximum power point, ठीक है। Initially P and O method की ये disadvantage है, जो आपका वोल्टेज पॉइंट होता है, ठीक है, जब वोल्टेज जो हमें ऑब्टेन करते हैं दैट ऑसिलेट्स अराउंड द मैक्सिमम पावर पॉइंट, उसके आसपास ऑसिलेट करती रहती है, जैसे कि हमने ये A1 और A1 से डेजिग्नेट किया हुआ है। दिस शोज दैट कि हमारा जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो शुरू में मैक्सिमम पॉइंट के आसपास ऑसिलेट करती रहेगी, लाइक फ्रॉम A से लेके A1 के बीच में, ठीक है। अब जैसे ही हमारी पावर बढ़ेगी ड्यू टू द सोलर रेडिएशन, सो हमारा कर्व 1 से इंक्रीज होके कहां पे पहुंच जाएगा, कर्व नंबर 2 पे पहुंच जाएगा। सो नाउ हियर वी विल अज्यूम दैट जब वो पॉइंट A के ऊपर था, ठीक है, which obtains from the diminish of the voltage value, और उसके बाद जब डिस्टरबेंस हुई, इरेडिएशन बढ़ी, ठीक है, कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स अब हमें कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स अब हमें ऑब्टेन हुई है दैट आर एज पर द कर्व नंबर 2। सो अब जो ऑपरेटिंग पॉइंट था वो शिफ्ट होके कहां पे चला गया, B1 पे चला गया, ठीक है। सो द ऑपरेटिंग पॉइंट नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स द B1, यहाँ पे आपका शिफ्ट हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज पावर आपकी बढ़ी है, पावर में क्या हुआ, आपका पॉजिटिव इंक्रीज हुआ है,
ठीक है। सो इसका मतलब जो डिस्टर्बेंस होनी चाहिए वो भी आपकी सेम डायरेक्शन में ही कंटिन्यू करनी चाहिए एज पर द टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 क्या करता है, अगर पावर आपकी बढ़ती है मींस इंक्रीज होती है, सो आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे, बढ़ाओगे वोल्टेज में वैल्यू को। ठीक है। सो एज पर डिस्टर्बेंस भी आपकी क्या होनी चाहिए, सेम ही डायरेक्शन में इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है। सो इसीलिए जो हमारा वोल्टेज पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, अब शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द बी पॉइंट। ए पॉइंट से कहां पे चला जाएगा, बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए जो सोलर रेडिएशन है वो और फिर से बढ़ जाती है, सो कर्व नंबर 3 पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब और ज्यादा पॉजिटिव पावर बढ़ी है, इसका मतलब अब ऑपरेटिंग पॉइंट जो होगा वो सी पॉइंट की तरफ आपका शिफ्ट कर जाएगा। ड्यू टू दिस डबल इंक्रीज इन द सोलर रेडिएशन, ऑपरेटिंग पॉइंट आपका ए से ट्रांसफर होके कहां पे पहुंच गया, सी पॉइंट पे पहुंच गया, विच मूव्स अवे फ्रॉम द मैक्सिमम पावर पॉइंट। पहले यहां पे था, ठीक है, फिर बी पे पहुंचा, थोड़ा और दूर हुआ, फिर सी पे पहुंचा, थोड़ा सा और दूर हो गया। मतलब क्या हो रहा है, आपका ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द एमपीपी एज अ सोलर रेडिएशन इज बीइंग इंक्रीज्ड। ठीक है। ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहता है टिल द सोलर रेडिएशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, जैसे बढ़ती है या कम होती है अकॉर्डिंगली ये प्रोसेस आपका चलता रहता है फॉर द पी एंड ओ मेथड। ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस इज एन disadvantage of this method, P and O method, which where the algorithm does not respond rapidly to the changing in environmental conditions, and moreover steady state conditions में भी जो आपका operating voltage point होता है that shifts or oscillates around the MPP maximum power point के around oscillate करता रहता है, which resulting in giving the wastage इन एनर्जी, जो एनर्जी होती है वो आपकी वेस्ट होती रहती है बिकॉज ऑफ बीइंग ऑसिलेशन अराउंड द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम पावर, so which is considered to be the basic disadvantage of the P and O method. However, this disadvantage can be overcome, इसको हम overcome कर सकते हैं। overcome कैसे किया जा सकता है, it can be overcome with the help of certain optimization algorithms or techniques, or by increasing the speed of the कंट्रोल एल्गोरिथम। कंट्रोल एल्गोरिथम की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है अगर हम उसको इंक्रीज कर दें तो इस ऑसिलेशंस को कम किया जा सकता है। सेकेंडली वी कैन यूज द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आल्सो, बट इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। तो उसके लिए क्या किया गया, इस डिसएडवांटेज को कवर अप करने के लिए नेक्स्ट मेथड बनाया गया, नेक्स्ट मेथड को डिजाइन किया गया रिसर्चर्स की तरफ से। ठीक है, जिसको कहते हैं हम कंडक्टेंस इंक्रीमेंटल मेथड और CI मेथड। So an alternative to the PO method was proposed by developing the CI method, which is based upon the equation number 7. Here we are differentiating the PV power with respect to the voltage and set the result equal to 0. So यहाँ पे FB लिखा हुआ है पैरों में, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में। FB का मतलब भी फोटोवोल्टेइक ही है। So here photo means फोटो को F से रिप्रेजेंट किया गया है। आप FB की जगह पे PV भी लिख सकते हैं, ठीक है। यू कैन राइट डाउन PV आल्सो इन प्लेस ऑफ FB, आप PV भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो इक्वेशन को हमने विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज डेरिवेट किया, डेरिवेट डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, और रिजल्ट क्या ऑब्टेन हो रहा है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 7 से इक्वेशन नंबर 8 ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। जैसे कि इस इक्वेशन से अब हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वल टू 0 पुट किया, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। माइनस ऑफ आई पीवी बाय वी पी इज इक्वल टू डी आई पीवी बाय डी वी पीवी। नाउ द लेफ्ट हैंड वैल्यू इंस्टेंटेनियस कंडक्टेंस वैल्यू का ऑपोजिट रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज़ उसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है। वेयर हैज राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 8 इट representing the incremental conductance because d लगा हुआ है means change in conductance, so incremental conductance की वैल्यू को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां पे अब हम जो हमारा dPV dVPV या dIPV है इसको इंक्रीमेंटल वेरिएशंस को अप्रोक्सीमेट करेंगे बाय इंक्रीमेंट्स ऑफ बोथ द पैरामीटर्स एज डेल्टा VPV और डेल्टा IPV। डी की जगह पे क्या यूज करेंगे, डेल्टा यूज करेंगे, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ VPV एंड IPV by measuring at the particular instance T1 and T2, ठीक है, as per the equations number।
1 second guys. Soon connect it back. स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी पीछे? आ रही है सर। आ रही है आवाज? ठीक है जी। बीच में होल्ड ऑन आ गया था मीटिंग में, आई थिंक सो सम इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज आ गया था। सो एज पर द क्वेश्चन नंबर 9, सो डी वी को हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माना है किसके, डेल्टा वी के, ठीक है। तो एट इंस्टेंट 2 हम निकाल रहे हैं, तो इंस्टेंट 2 पे कैसे निकलेगी आपकी वीपीवी T2 माइनस वीपीवी T1, चेंज जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। चेंज हम निकाल रहे हैं, कितना चेंज आ रहा है प्रीवियस वैल्यू से, मींस एक हमारा वी अनदर एक सैम्पलिंग इंस्टेंट T2 पे और एक सैम्पलिंग इंस्टेंट T1 पे वैल्यू आ रही है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, चेंज कितना है, तो वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें पता है जो इक्वेशन होती है dp बाय dv, वही हमें देगा, अगर इक्वल टू 0 होगा वो हमें मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑब्टेन करके देगा, ठीक है जी। सो दैट इज ऑब्टेन्ड एट द बेंडिंग पॉइंट ऑफ द कर्व। सो दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा। अगर लेस देन 0 है तो इधर की साइड, अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। ऑन द पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ इट शोज द एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट की फॉर्म में हमने एल्गोरिथम को यहाँ पे दिखाया है। अगेन ओके, स्टूडेंट हैज बीन एंटर्ड, ठीक है। सो सबसे पहले बिगनिंग स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद हम मेजर करेंगे किस चीज को, वीपीवी T1 और आईपीवी T1 की वैल्यू को मेजर कर लेंगे। देन T2 और दूसरे इंस्टेंट पे मेजर करेंगे, देन विल सी द डिफरेंस बिटवीन द बोथ वैल्यूज डीवीपीवी एंड डीआईपीवी। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर डीवी मींस डिफरेंस 0 आ रहा है, ठीक है। अगर 0 आ रहा है तो क्या देखेंगे फिर, क्या करंट का डिफरेंस भी 0 आ रहा है, ठीक है। अगर करंट का डिफरेंस भी 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर से मेजर करेंगे T2 रेफरेंस वैल्यू पे चले जाएंगे। हाँ, अगर आपका 0 नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे डिसीजन बॉक्स, अगर आपका वोल्टेज 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। पहला हम वोल्टेज अगर 0 नहीं आया, नो हो गया, देन कंडीशन देखेंगे जो हमारा इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस है दैट इज इक्वल टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द इंस्टेंटेनियस कंडक्टेंस, वो इसके इक्वल है या नहीं है, दैट इज डी आई बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस आई बाई वी चेक करेंगे। अगर वो यस है देन अगेन वी विल गो टुवर्ड्स द टॉप में चले जाएंगे, यहाँ पे ये आपका कर्व आ रहा है, ठीक है। हाँ, अगर वो इक्वल टू नहीं आ रहा है, नो है, देन कंडीशन चेक करेंगे क्या ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है तो क्या ग्रेटर देन वैल्यू है, इफ यस देन वी विल ऐड द स्टेप साइज, if no then we will decrease the step size. Similar we will do with the current also. current है तो हम ऊपर चले जाएंगे, फिर से रिपीट करेंगे iterations को, अगर no है we'll check the condition that whether it is greater than or less than, अगर greater than है तो प्लस करेंगे, अगर less than है तो माइनस करेंगे, and again repeat the same process. so ये दो कंडीशंस हमारे पास एग्जिस्ट होती है। अगर dp by dv ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो वोल्टेज हमें ऑब्टेन हो रही है वो मैक्सिमम पावर पॉइंट से कम ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, मैक्सिमम पावर पॉइंट से कम ऑब्टेन हो रही है, इसका मतलब हम इसमें इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 तो बिल्कुल मैक्सिमम पावर पॉइंट पे वोल्टेज ऑब्टेन हो रही है, ठीक है, मैक्सिमम पावर पॉइंट हमें मिल गया। अगर लेस देन 0 आ रहा है dp by dv तो इसका मतलब वोल्टेज हमारी v एम्पीपी से ज्यादा है, तो हमें उसमें डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा उसको। So the main advantage of this algorithm is that it offers a good yield method under rapidly changing atmospheric condition. So जो problems हमें PO and O method में obtain हो रही थी वो यहाँ पे हमारे eliminate हो जाती है, because it achieves lower oscillation around the MPP than the P and O method. Even though when the P and O method is optimized, so MPPT की efficiencies with the incremental conductance and PO MPPT algorithms are essentially the same. दोनों की almost same ही रहती है, ठीक है जी। So nonetheless the drawback of this method is that which is nowadays वो अब eliminate हो चुके, that is a complex control circuit, जो काफी ज्यादा महंगा पड़ता था काफी साल पहले, ठीक है। बट आज के टाइम में, ठीक है, that is not a disadvantage, ठीक है, क्योंकि now it becomes a it is not a costly, it becomes a cheap, ठीक है, because of advancement in the technology. Clear? So this is the sum up of the MPPT algorithms.